Please subscribe, like and share me to make me happy. اس افسانے کی شروعات آنند نام کے ایک گاؤں سے شروع ہوئی ہے۔ مینا نامی ایک خاتون اپنے فرزند کے لیے ایک لڑکی تلاش کر رہی تھی۔ میرا اروند شہر میں ایک بہت بڑی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے۔ اس کی تنخواہ 30,000 روپے ہے۔ 30,000! یہ تو بہت اچھی بات ہے بہن جی۔ اروند کے شہر میں کئی رشتے آئے ہیں، لیکن میں نے تو پہلے سے ہی انکار کر دیا۔ میں نے تو شروع سے ہی سوچ رکھا تھا کہ میں تو گاؤں سے ہی بہو لاؤں گی، ایسی لڑکی جو دکھنے میں خوبصورت ہو اور گھر باہر کا بھی اچھے سے خیال رکھے۔ فکر مت کریں بہن جی، آپ کو تمام خوبیوں والی لڑکی تلاش کر دوں گی۔ شکریہ۔ اسی دن سے گاؤں کی اس خاتون نے اروند اور اس کی ماں کو لڑکیاں دکھانا شروع کر دیں۔ یہ لڑکی کافی تعلیم یافتہ ہے، گریجویٹ کر چکی ہے۔ مینا اور اروند لڑکی کا گھر اور جائیداد ہی دیکھ رہے تھے۔ کئی رشتے دیکھنے کے بعد وہ شنکر جی کی لڑکی سیتا کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ سیتا دکھنے میں بہت خوبصورت تھی، اور سب سے اہم بات، شنکر جی گاؤں کے سب سے رئیس شخص تھے۔ مجھے تو آپ کی دختر بہت اچھی لگی ہے۔ اگر آپ کو ٹھیک لگے تو ہم اگلے 1 ہی مہینے میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا صرف 1 مہینہ؟ وہ کیا ہے کہ اروند کمپنی سے بار بار چھٹیاں نہیں لے سکتا۔ اس نے اس بار 1 مہینے کی لمبی چھٹی لی ہے، تو اگر یہ شادی اس بیچ مکمل ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ شنکر اور مادھوی اپنی دختر کے لیے ایسا ہی رشتہ تلاش کر رہے تھے، اس لیے ان لوگوں نے شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ جی ٹھیک ہے بہن جی، جیسے آپ کی مرضی۔ شنکر جی کا خاندان کافی امیر تھا، اس لیے انہیں پیسوں کی تو کوئی فکر تھی ہی نہیں، اور اسی دن ان لوگوں نے منگنی کی رسم ادا کر دی اور پھر شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ مینا اور اس کا بیٹا اروند بھی گاؤں میں ہی تھے۔ وہ لوگ بھی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع کرنے لگے۔ شادی سے 1 دن قبل مینا جی شنکر جی سے ملاقات کرنے آئیں۔ کیا بات ہے مینا جی؟ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے شنکر جی، بس یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ دلہن ڈولی میں بیٹھ کر ہی سسرال جاتی ہے، تو میں نے کل ڈولی والوں کو بلا لیا ہے۔ یہاں سے ہمارا شہر کچھ 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن میں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ بہو کو تقریباً 8 گھنٹے ڈولی میں ہی بیٹھنا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، اس سے قبل بھی تو دلہن کو گھنٹوں ڈولی میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ ہماری بیٹی بھی بیٹھے گی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے بہن جی؟ آپ لوگوں سے یہی امید تھی۔ مادھوی نے ڈولی والی یہ بات اپنی بیٹی سیتا کو بتائی۔ تیری ساس بہت اچھی ہے، وہ ہمیں یہ بتانے آئی تھی کہ کل تمہیں 8 گھنٹے ڈولی میں بیٹھنا ہے۔ سیتا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے امی، اب کیا ہی کر سکتے ہیں، میرا سسرال اتنا دور جو ہے۔ ہاں بیٹا، ایسا ہی ہے۔ شادی کا دن آیا۔
शंकर जी ने अपनी खुशी से 10 लाख रुपए मीना जी के हाथ में रख दिए। बहन जी, ये जहेज नहीं है, इसे हमारी तरफ से तोहफा समझिए, बच्चों की नई जिंदगी के लिए। अब आप अपनी खुशी से दे रहे हैं तो हम कहाँ इनकार कर सकते हैं। शंकर जी ने 10 लाख के साथ साथ कई और चीजें भी अपनी बेटी को दे दी। शादी मुकम्मल हुई और रुखसती का वक्त आया। सीता बहुत रोई और फिर डोली वाले वहां हाजिर हुए। सीता बेटा, तुम डोली में बैठ जाओ, हम कार से आगे जा रहे हैं, फिक्र मत करना, डोली वाले तुम्हें सही सलामत हमारे घर ले आएंगे। जी सासू माँ। मीना और अरविंद कार में बैठकर रवाना हो गए और फिर सीता डोली में बैठ गई। डोली गांव से निकल गई और सीधा शहर पहुंची और यहाँ एक बंगले के रूबरू रुक गई। आपका ससुराल आ गया है। सीता हैरान थी। उसके ससुराल के बाहर कोई उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद ना था और ना ही कोई सजावट थी। जी जी बाजी, हमें तो यहाँ का पता ही दिया था। अच्छा ठीक है, मैं अंदर देख कर आती हूँ। जी ठीक है। सीता बंगले के दरवाजे पर गई और उसने घंटी बजाई। एक ज़ईफ शख्स ने दरवाज़ा खोला। जी फरमाइए। ये अरविंद जी का घर है ना? है ना? ये तो मेरा घर है बेटी, यहाँ कोई अरविंद नहीं रहता। क्या यहाँ कहीं आस-पास कोई अरविंद जी रहते हैं जो मीना जी के बेटे हैं? नहीं बेटा, ये मेरा घर है, यहाँ पर कोई अरविंद नहीं रहता और ना ही कोई मीना जी। ज़ईफ शख्स की ये बात सुनकर सीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो एक अनजान शहर आ चुकी थी और उसके ससुराल का भी कोई अता पता नहीं था। वो बहुत परेशान हो गई और बहुत रोने लगी। बुजुर्ग शख्स ने सीता से पूछा कि तुम कौन हो बेटी? मैं सीता हूँ, आनंदपुर गांव से। आज ही मेरी शादी हुई है अरविंद जी से और उनकी माँ ने डोली वालों को आपके घर का ही पता दिया था। मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने ऐसा क्यों किया है। ज़ईफ शख्स समझ चुका था कि सीता के साथ फरेब हुआ है, लेकिन उसने सोचा कि बेचारी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ज़ईफ शख्स ने सीता से कहा, लगता है तुम्हारी सास से कोई गलती हुई है। तुम मेरी मानो तो अपने गांव वापस चली जाओ बेटी। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे गांव जरूर आएंगे। सीता उस ज़ईफ शख्स से कहती है कि नहीं, मैं ऐसे गांव नहीं लौट सकती। अगर मैं ऐसे गांव गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ज़ईफ शख्स ने सीता से कहा, बेटी, तुम इस नामालूम शहर में कैसे रहोगी? मालूम नहीं। सीता रोती हुई वहां से जा रही थी कि ज़ईफ शख्स ने सीता से कहा, एक मिनट बेटी, मैं तुम्हारे वालिद की तरह ही हूँ। इस नामालूम शहर में भटकने से बेहतर है कि तुम मेरे घर में ही रह लो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द तुम्हारे ससुराल वालों को ढूंढ सकें। वो बुजुर्ग शख्स
सीता की मदद करना चाहता था। सीता के पास वहाँ रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए सीता ने उस बुजुर्ग आदमी की बात मान ली। अगले कुछ दिनों तक सीता ज़ईफ़ शख्स के घर ही रही। ज़ईफ़ शख्स काफ़ी रईस था। उसने सीता की मदद के लिए अखबारों में इश्तिहार भी डाल दिए और ख़ुद भी अरविंद और उसकी माँ मीना को ढूंढने में लग गया। सीता समझ चुकी थी कि उसे उसका शौहर नहीं मिलेगा। एक रोज़ सीता ज़ईफ़ शख्स के पास गई। आपने मेरा अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे शौहर कभी लौटेंगे। बेहतरी इसी में है कि मैं अपने गांव वापस लौट जाऊं। ज़ईफ़ शख्स ने कहा, आज तुमने सही समझा है बेटी। मैं तो पहले ही दिन समझ गया था कि तुम्हारे साथ फरेब हुआ है, लेकिन तुम्हारा ये मासूम चेहरा देखकर मैं बहुत परेशान हो गया और मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम इस नामालूम शहर में ना भटको, इसलिए मैंने तुम्हें हकीकत नहीं बताई बेटी। सीता रोते हुए उस शख्स के गले लग गई। जिंदगी में हमेशा खुश रहना बेटी। दुआएं खैर लेकर सीता अपने गांव वापस लौट गई। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। सीता ने वापस लौटकर सारा किस्सा अपने माँ बाप को बताया और उसका ये किस्सा सुनकर उसके माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। सीता के बाप ने कहा, मेरी ही गलती है बेटी, मैंने बिना देखे भाले तेरी शादी कर दी। सीता की माँ ने कहा, भला हो उस शख्स का जिसने तुम्हें पनाह दी। हाँ बेटी, वरना मालूम नहीं तेरा क्या हाल होता। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र और ज़ईफ़ शख्स की नेक दिली कि सीता अपने घर लौट आई थी। ऐसी धोखाधड़ी कई दुल्हनों से होती आई है। सीता नसीब वाली थी कि वो इस फरेब से उभर पाई।